Janab, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. I'm really excited to welcome you back to another episode of Pro Talks. Somebody who's with us, I've been knowing her for a very long time now, and somebody who started off their profession as an engineer and now works as a head of central HR for Artistic Millionaire, an NLP coach, and a lot more. So let's get to know a bit about her. Please welcome Annie Arsalan. क्या हाल है आपके? I'm doing great, Annie, and I'm so happy that you are here with us as one of the guests. Thank you. So I to already know a lot about you, your story, but I would love if you tell a bit about you to our viewers, to the community watching us. So tell us a bit about your story, the inspiring story we've been Okay. talking about. So इंस्पायरिंग स्टोरी यस आई थिंक हर एक की स्टोरी उसके लिए तो इंस्पायरिंग ही होती है हाँ, जो हमारा जर्नी होता है हाँ, लेकिन आई थिंक इफ आई कैन पिक फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स सो आई वुड yeah, डेफिनेटली से कि आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली लेकिन ऑफ कोर्स आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा जर्नी मिला लोग ऐसे मिले Alhamdulillah. और फिर डेफिनेटली हार्ड वर्क that has made me able to gain the position and the standing whatever I am having right today. Yeah. Yeah. So the story of your father that you were telling me about, that how you landed up into NED and how it was I the see. story of your father. So please tell us a bit about that. All right. So, as like people do ask me that how you are in HR, and they do ask me then why engineering. तो Yeah. मेरे लिए जो मेरा जो why था ना, that Yeah. was for choosing engineering Yeah. was coming from the emotional side which I had for my father. So matriculation में I didn't score very good. I scored just at the border. I was at the borderline of A1 grade अगर matriculate की बात करते हैं तो my father really got very upset, very low, because probably he had some different expectations out of me. तो मुझे बहुत बुरा लगा जब उनको इतना ज़्यादा मैंने डाउन फील कराया and he didn't say me a word, but I could have seen it कि मुझे ऐसा लगा ना जैसे किसी के ख्वाब टूट जाते हैं. So that was the only reason I took a drive कि यार मुझे इन्हें प्रूव करना है. उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि प्रूव क्या करना है, बट ये प्रूव करना है कि I can score even better. Oh. When I scored better, Yeah. तो फिर नेचुरल ड्राइव आ गया कि यार NAD या आप पाकिस्तान की या कराची की बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल्स में जाना है. So it was primarily my father's dream, but I carried it away, and later it became my own journey. I owned it. Yes. So it was more like your father wanted you to Yes. get into NED, Yes. and then you, Alhamdulillah, eventually landed up there, and then Allah planned a journey The for entire you. journey. Yes. So I follow you a lot on LinkedIn, and I think you've been doing great. Anytime I open LinkedIn, I see any. Thank So you. it has been a great journey for you, right? Yeah. So I want to know, and the viewers would love to know that what has helped you stand out, what has helped you have the smooth journey of your the transition. So वो क्या फैक्टर है? यार अगर मैं आपको बहुत मिनिमम लफ्ज़ों के साथ बताने की कोशिश करूं जी. कि स्टैंड आउट करने की सबसे मेजर रीज़न जहां तक भी मैं कर पाई लाइफ में, उसका सबसे प्राइमरी रीज़न ये था कि मैं हमेशा उन लोगों से इंस्पायर होती हूँ जो स्टैंड आउट करते हैं. तो मेरा इंस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा वो एक्स फैक्टर पे होता है. और थोड़ा सा अगर मैं आई मीन इट्स ऑन द लाइटर साइड इफ आई हाँ, हाँ. आंसर इट कि जब हम व्हेन मी एंड माय हस्बैंड वर ट्रैवलिंग एंड वी सॉ शाहरुख खान, तो बहुत क्राउड था मलेशिया में. लोग उर्दू भी नहीं बोलते, हिंदी भी नहीं समझते, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड. वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम पाकिस्तान जैसा रश क्यों है इन वन ऑफ द मॉल. सो इट वाज एन ओपनिंग एंड फॉर अ ब्रांड. तो शाहरुख खान को देख के माय हस्बैंड वाज फुल ऑफ जॉय कि यार हमें पिक्चर लेनी है और मज़ा आ रहा है. एंड आई वाज ओनली थिंकिंग कि ये हमारे जैसा दिखता है, ही इज़ अ हम्बल फेलो, एंड इसके लिए इतना क्राउड है. तो मैं हमेशा स्टेज के उस तरफ आना चाहती थी अनकॉन्शियसली. सो स्टैंड आउट होने की दुनिया में जितने भी लोग हो पाए, उसका रीज़न ये होता है कि वो हमेशा कुदरती तौर पे क्राउड नहीं बनना चाहते. एंड फिर उनको रास्ते मिलते हैं और लोग मिलते हैं जो उनको हेल्प आउट करते हैं लिफ्ट करने के लिए. सो nothing was changed for me as well. Professionally and personally, I ended up meeting people, great people who held me
in my journey as well. I think how you have said it is so amazing that वो जो लोग कहते हैं ना कि 90% लोगों की तरह वो सब नहीं करो जो 90% कर रहे हैं. Think like 10% and you just articulated in a certain way that you brought example of Shah Rukh Khan and I think that's amazing. So आपको क्या लगता है कि वो जो स्टैंड आउट करने के लिए कुछ तो चाहिए होता होगा ना. हाँ. जैसे शाहरुख खान ने कुछ किया हाँ. होगा वो स्टैंड आउट हो गया 10% में आ गया Yes. 90 में नहीं आया. तो स्टेज के इस तरफ से उस तरफ तक की जर्नी में क्या चीज होनी चाहिए एक जो स्टैंड आउट करा ऑलराइट, सकती है. तो सबसे पहला कंपोनेंट तो वो आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए, हाँ. आपके अंदर की ड्राइव होनी चाहिए. सही. फिर दूसरी चीज ये है, आई मीन आई टेक इट इनटू 3C. हाँ. So first thing is that you do have the drive and then you build up your competency. To build up the competency you have to find the right people who have that competency. तो मेरा बहुत बेसिक फार्मूला है, जब आपके पास अगर आपको 1 लाख कमाना है ना, तो उससे मत पूछें जो 50,000 कमाता है, उससे Very पूछें true. जो 10 लाख कमाता है. तो जो आपसे 10 गुना ज्यादा कमाता है उसको कम से कम 1 लाख कमाना आता है. हाँ. इसीलिए अगर आपको मशहूर होना है ना, तो आप ट्राई टू फाइंड आउट इन योर सर्कल हु हैव दिस कैपेसिटी, राइट. एंड देन जब इंटेंशनली आप कोशिश करते हैं तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं, एंड देन प्रैक्टिस इट, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट यू एनी हाउ बाय मतलब गिर पड़ के आप किसी ना किसी जगह अपनी जगह से तो ऊपर ही पहुंचते हैं. So for me that is the takeaway for the audience who wants to excel somewhere in their own journey. That's very true. और जब आप ऐसा कह रही तो मेरे दिमाग में ऐसे तारें जल रही थी that whatever you're saying is something that I'm practicing now. Learning from the people who are already very very ahead of me और उनसे सीखूंगा तो मैं कहीं पहुंच पाऊंगा. Yes, yes. So very true on that. अब अभी आपने ऐसा जिक्र किया about role of people in your life. Yes. Finding the right people. So I want to know that what role people have played in your life, in your growth, your development, your success. What has that been? Okay, so I always mention it many times and I want to take another opportunity to mention it one more time happily कि आपकी लाइफ में ना एक आपका अपना साइड होता है that you can see, एक आपका blind side होता है which is Oh, yes. proven by science. Yeah. और you know it as well Yeah. being a trainer too. Yeah. जो blind side होता है ना उसकी आपकी लाइफ में बहुत अहमियत होती है. बिल्कुल. तो जो कहते हैं ना feedbacks are like gifts, ये Yes. लेते भी रहें और देते भी रहें, लेकिन लेते ज़्यादा रहें. So for me, the people who have actually shaped me were my mentors and the people. जैसे last में आपको बात करूं कि जब engineering से मैं HR में आई, हाँ. so engineering से HR में आने के लिए when I was being interviewed, I was interviewed for another scope of work. लेकिन during the interview जो मेरा people side था जो हमेशा से strong था लेकिन मुझे नहीं पता था. हाँ. It was taken as an opportunity by the organization by Alia Iqbal. Then she picked me as a resource and then trained me और pushed me कि any जो तुम्हारी personal side है ना इसको profession के साथ connect कर दो, you will excel like anything. Though as she was herself a very nice and kind lady, my heart said to believe her. Okay, Oh, yes. so for me कि who to take advice, it comes with who you can trust, who is himself or herself a well-wisher, second component, and third, who is better than you at that point in time, at least for that competence. So वो तीनों चीजें उसके अंदर मौजूद थी and I trusted her and I took that risk for myself. और फिर मैंने अपने आप से कहा कि क्या फर्क पड़ता है, 1 साल करके देखूंगी, नहीं हुआ तो बैक टू इंजीनियरिंग चली जाऊंगी, लाइफ तो नहीं खत्म हो रही. Oh, yes. So I took that risk and I started loving what I did. And then so one is Alia, another one is it comes with your university, with the friends you sit with. So I am really blessed that my husband is my friend and he himself is the one who takes a lot of interest in my growth. तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों का जुड़ना ज़रूरी है जो आपको बताएं भी कि आप क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आपके जर्नी में आपका साथ बने, वो आपको ये सिर्फ ना दिखाएं, ब्लॉकेजेस ना दिखाएं, जो अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दिलाएं. तो अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं तो ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा दूर कर लें. अदरवाइज ये नहीं कहती मैं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन शायद आपका जो पोटेंशियल है ना, जहां तक आप जा सकते थे, आप उससे बहुत पहले ईज आउट होके रुक जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या खोया है. And I think I was recently watching a video
ऑन दिस, उसमें उसने बहुत मज़ेदार तरीके से, ऐसे इंग्लिश में भी एक है और उर्दू में भी एक है, वो ये था कि एवरीबडी नीड्स अ फ्रेंड हु जस्ट सेज कि तू कर मैं हूँ, Yes. मतलब टेंशन नहीं लो, Yes. बिकॉज इन द वर्ल्ड आउट देयर एवरीबडी इज लाइक कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं Yes. कर सकते, ऑल ऑफ दैट. Yes. If you find somebody that says तू कर हाँ. मैं हूँ, I think that's fabulous, and I'm so happy that your husband, your family is so supportive. Yes. Abhi, before you, I was also having a podcast with another lady. She also said that in order for her growth to be this exponential, it has been her family and her partner. Absolutely. So Absolutely. thank you to all the family members and the partners And who are also it is, supportive. I have seen the same for the men fellows as well. Yes. I mean, मैंने genuinely लोगों हाँ. की शादी के बाद और सिर्फ उनके सर्कल के चेंज हो जाने से उनके अंदर बहुत पॉजिटिव बिल्कुल. और नेगेटिव दोनों चेंजेस देखे हैं. बिल्कुल. So the four of the people you are Yeah. surrounded with, the fifth one is you. So if the बिल्कुल. four are conservative, you can't say I'm a very open-minded. Yeah. Gradually, you will end up becoming the same. And if they are growth mindset, you can't stand there if you either become one of them or you just say कि अच्छा goodbye मुझे कोई और circle चाहिए. Very true. That's the strong power of aura that there Absolutely, is. absolutely. All right. So moving on to another question, that is, while growing up or while you were growing in this profession, and we all are still growing, so वो जो आपके बचपन के क्या ख्वाब थे, आप क्या देखती थी, what were your aspirations, Okay. what sort of things you were inspired from, क्या characters आपको अच्छे लगते थे, what was it all about? All right. So after having this NLP tour and becoming a life coach, अब जब मैं इधर बैठती हूँ और क्लाइंट से बात सुनती हूँ और मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ, तो one of the component that I didn't know at the time when I was really young. तो जब अब मैं अगर पलट के देखूँ तो व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मूवीज़, तो मुझे जैसे अगर 7-8 बच्चों के साथ आप एक साथ ग्रो कर रहे हो, तो उनकी बातों में और मेरी बातों की इंस्पिरेशन में फ़र्क था. Oh, okay. दे वर व्हेन दे वर एक्चुअली प्लानिंग कि यार कोई एक हीरो आएगा जो लाइफ में सब अच्छा कर देगा, आई वाज़ मोर इंस्पायर्ड बाय द वुमेन कैरेक्टर जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग या तो रोल दिखाया जाता था या उसकी साइनिंग अथॉरिटी से कुछ बड़ा हो जाता था मूवी के अंदर. सो आई नेवर रियलाइज्ड एट दैट टाइम, लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है ना, बेसिक इंस्पिरेशन, वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करने की कि अब्बू के सामने बेस्ट बनना है, फिर हस्बैंड के सामने बेस्ट बनना है, फिर बॉस के सामने बेस्ट बनना है, फिर बच्चों के सामने बेस्ट बनना है, फिर ग्रैंड सन्स के सामने बेस्ट बनना है. सो जो बेस्ट बनने की ड्राइव होती है ना, ये कंपोनेंट का जो कीड़ा होता है ना, दैट इज ऑलवेज द सीड इज देयर. इफ यू डोंट ग्रो एंड नरिश इट, ऑफ कोर्स इट विल डाई. सो फोकस देना पड़ता है. लेकिन जो लोग जिंदगी में कहीं भी पहुंचते हैं, इफ यू स्टार्ट टेकिंग देयर जर्नी एंड पिक अप द ट्रेड्स, दिस मस्ट बी देयर. सो एक फिटनेस पे बहुत फिट इंसान को भी अगर आप देखें ना, तो उसको फिट होने की ख्वाहिश उस वक्त से होगी जब उसको फिटनेस का मायने पता चला होगा. अब वो कितना हो पाया, कितना उसने अपने आप पे काम किया, दैट इज समथिंग एल्स. Amazing. So you have been somebody who has been thinking, who has been doing things, been trying out new things. तो वो क्या चीज़ होती है जो आपको ऐसा पुश करती है कि यार अब मुझे इसको भी, you have a very proactive approach, right? So all the viewers are watching us, all the people will be listening to us. तो आपके अंदर ऐसा क्या एलिमेंट आता है कि जो आपको ऐसा प्रोएक्टिव रखने पे ऐसा होता है, एंड यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. तो Okay. व्हाट्स दैट थिंग, और वो हम लोग कैसे सीखें? अच्छा, अब मैं इसका ना, क्योंकि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, ठीक है, हाँ. और मेरे हिसाब से मेरी जनरेशन में जो भी लोग जहाँ तक भी पहुँच रहे हैं, रोड मैप अगर होता है तो काम आसान होता है. लेकिन अगर रोड मैप नहीं होता ना, तो फिर ये तलाशना कि करना क्या है, ये भी हमारा ही काम होता है, तो मेहनत डबल हो जाती है. तो व्हाई आई वाज स्माइलिंग व्हेन यू वर पुटिंग इट इन माय माइंड कि एक मैं आपको बहुत देसी अंदाज में बताऊंगी, हाँ, ठीक है. बिल्कुल प्लीज. सो वन डे आई वाज वेरी फेड अप विद समथिंग, ठीक है, अबाउट माय प्रोफेशन. तो मुझे हुआ ऐसा कि दुनिया में, अपने आप से मैंने सवाल किया कि यार मैं दुनिया में पहली इंसान तो नहीं होना जो तरक्की करना चाहता है, ठीक है. तो व्हेन आई वाज हैविंग अ सेल्फ डिबेट एंड हैविंग अ सेल्फ डाउट ऑन समथिंग, तो मैंने कहा जो दुनिया में करते हैं वो क्या करते हैं कि वो तरक्की कर लेते हैं, यू नो. सो अपने ही आप से बहस करते हुए मैंने एक अपने आप को आंसर दिया
कि अगर तरक्की सिर्फ मुझे करनी है तो मैं पहला तो आदम नहीं आया ना इस दुनिया में कि उसको तरक्की करनी है, तो आई डोंट नो, इससे पहले बहुत लोग ऐसे होंगे। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि मेरे हिसाब से जो लोग उस वक्त कामयाब थे, मैंने लिंक्डइन पे उनको टैग किया और उनके जर्नी को, मुझे किसी ने ये फॉर्मूला नहीं बताया था, इट कैन वर्क्स फॉर समवन, इट कैन नॉट। मैंने उस वक्त सारे जो सी टियर लोग थे उनका अपने पास नाम लिखा, आई डू हैव स्टिल द डायरी, एंड देन उनका करियर जर्नी कि इन्होंने कितना, तो मैंने कुछ कंपोनेंट्स निकाले कि 2 साल से ज़्यादा ये एक जगह काम नहीं करते, लेट्स सपोज एक पोजीशन पे नहीं रहते, अपनी लाइफ में सिर्फ एक काम नहीं करते, एंड अप्रोच रख के दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। और फिर मैंने ये देखा कि उनके बैचलर्स और मास्टर्स में कितना गैप है, अगर बैचलर पाकिस्तान का है तो मास्टर की डिग्री कौन सी है। तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन फार्मूला, and what I did, I just followed their footsteps. Simple. So beautiful of that. And I think it very collides with a very new thing that I was learning. वो ये था कि हम आज तक सुनते हैं कि विजन बनाओ, विजन बनाओ, विजन बनाओ. I was listening to one speaker, उसने बोला नहीं बनाओ. जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास विजन आ जाए और वो बना ले, टाइम लगता है. हाँ. तो जिन लोगों ने ऑलरेडी विजन बना लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को हाँ, कनेक्ट कर लो उस हाँ. विजन से, Yes, तुम yes. भी वही रिजल्ट अचीव कर Yes, पाओगे. yes, 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 And yes. I think you have put that into a very great way for us to understand. Last question. ऐसे तो I'm loving this conversation. It can take hours, but time को ऐसा महदूद रखते हुए, one piece of advice that you would want to give out to the viewers, to the people जो अभी इस जर्नी में हैं कि वो ये देखना चाहते हैं what's possible. ठीक है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं redefining what's possible, people like you and other guests. So what's one piece of advice that you'd want to give out to them? So, all right. So, one piece of advice should be really meaningful and should be something which can help you. Yeah. एक आपने वो कहानी सुनी है जो बीबल बीबल मतलब एक बादशाह था और बहुत स्ट्रिक्ट बादशाह था और उसके पास उसका एक एडवाइज़र था जो बचपन की कहानियों में बताया जाता है। उसने अपने वज़ीर को बुलाया और उसने बोला कि मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मैं खुश हूँ तो मुझे गमज़दा कर दे और जब मैं गम पे हूँ तो मुझे खुश कर दे। यू वोंट बिलीव इट, 4 साल तक मेरे फ़ोटोज़ के अंदर, गैलरी के अंदर वो एडवाइस थी, and I took it in one of the trainings from one of the trainer, and it hit me like anything. For all my listeners, that advice is the only advice, the best advice I can give, कि ये वक्त गुजर जाएगा. So if you see it in a good times, you have to remind that there might hard times can come and you have to prepare. And if you are in hard times, it's okay. ये वक्त गुजर जाएगा. So that's it. Thank you so much for Yeah. bringing that up. I think it has been one of the best advices I have. ये बादशाह को दी थी उसके वजीर ने, and he was rewarded, and I am very thankful to Allah कि वो पूरी piece of advice हम तक आई है, because it actually helped me for years. And now it's going Yes. out to the world. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I'm so thankful to you, Annie, for taking out time, for coming here, for I'm happy that you called me. Thank you for giving me the chance. No. Thank I think you. it's a privilege for us for you to come, and I'm so thankful to you. And inshallah, we'll stay connected. Sure. We'll be looking for more opportunities. So for now, that's it. Thank you so Thank much. you. Assalamu alaikum.